आज हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो है गोल और टाइम मैनेजमेंट। अब तो सब एडल्ट्स हो, आप लोग ऑलरेडी जॉब्स में हो, इतना कुछ मैनेज कर रहे हो, इतनी सीनियर पोजीशंस पे भी हो, आपको लगता है कि इस सेशन की जरूरत है? Learning is always welcome, right? Okay, so I shall start with a few questions. Okay, just answer these questions. You don't have to share these questions with anybody, and then we shall move forward. My first question to all of you is, what is your happiest moment? मैं जवाब नहीं पूछूंगी. You can write it down. You may not, need not share it with anybody. What is your happiest moment? Just one happiest. Sorry? Just one happiest moment till now. Difficult. This moment is the happiest moment. Oh, fantastic. That's a wonderful answer. This moment is the happiest moment. And you may have something else also to say. So you need not say that. Just think about it. Note it down. If you wish to share, you're most welcome. जो लोग खुश रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि आदत से मजबूर हैं. नमस्ते जी. नमस्ते जी. नमस्ते सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? Am I audible, sir? जी जी कहिए सर. जी नमस्ते जी. नमस्ते. आपका सवाल में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए मेरे को जी. क्लैरिफिकेशन ये है कि यू आर आस्किंग व्हेन was or is your happiest moment or when do you feel happy, what is your question? आप कुछ भी लिख दीजिए सर, जैसा आपको समझ में आए. Okay, next question. One experience that you remember from school. One experience that you remember from school. अब आई मुस्कुराहट चेहरे पे. सर एक नहीं. Whatever comes first. It's not a test. It's just setting the tone. What do you use your money for? What do you use your money for? Not that what do you want to use your money for? What do you use your money for? And next question, who is the most important person in your life? Most important person. And the last question is, describe your friend. Describe your best friend. ऐसे नहीं लिखना. I have many friends, but so and so is my best friend. Just describe your friend. Done? Need is absent and English absent. The answer to one question, and that is, who is the most important person in your life? Your mother. Okay. Parents. Parents. And wife. Anji? Parents, mother. Kids अभी है नहीं ना, तो इसलिए जो और money. Please have a seat. Who's the most important person? इससे आसान तो सवाल नहीं हो सकता. Parents. सबके parents. Me myself. This was the answer I was looking for. You got to be the most important person in your life. Because alphabets में पहला alphabet A हो सकता है, but अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे important alphabet कौन सा है, वो है I. I'm not talking about being narcissistic. I'm talking about the fact that
unless we bring about or unless we start working on our own selves, no change would happen anywhere in our lives. The buck stops at you. Have you heard? Charity begins from. ठीक है, तो जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, जब हम जैसे आपने बोला, मैंने बोला ये टॉपिक सीखने लायक है, so most of you said हाँ, it's always good to learn. So who learns? I learn or we learn, right? So it is very important. तो अभी तक मैनेजमेंट में आपने कितनी सारी मैनेजमेंट सीख ली होंगी. स्ट्रेस पे हुआ सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सेशन हुआ इस बार नहीं. ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, आज मुझे बोला गया टाइम एंड गोल मैनेजमेंट. Let me tell you, as a psychologist, we cannot manage anything. We can only manage one thing, and what's that? Our own self. टाइम को भी मैनेज नहीं कर सकते. अगर आज आपको यहाँ पे पहुंचना था, डिस्टेंस वाइज सबसे दूर से कौन आया? डिस्टेंस वाइज हु ट्रैवल्ड? कितने बजे सर आप चले वहां से? बस किया, बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे आए? चंडीगढ़ से आए. फिर सबसे दूर से कैसे आए सर? सबसे दूर से 300 किलोमीटर. कितने बजे की बस या ट्रेन थी आपकी? मॉर्निंग में 5:30 पे स्टार्ट. 5:30 पे स्टार्ट. नॉर्मली कितने बजे उठते हैं? 6:30. तो उस दिन भी 6:30 उठ के टाइम को मैनेज कर सकते थे? 6:30 उठ सकते थे उस दिन? लेट हो जाता. So we don't manage time, my dear friends. We don't manage goals. We don't manage relationships. We don't manage quality. We manage our own self. Right? So जब तक हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं सीखेंगे, कुछ भी मैनेज नहीं होगा. We have 5 senses. हमारी सारी की सारी senses they are turned outward. आंख बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनता है, जुबान बाहर का चखती है. Right? So we are only turned outward. So गलतियां भी सामने वाले में दिखती हैं, मैनेज भी सामने वाले को कर लो, कंट्रोल भी सामने वाले को कर लो. But actually it has to be, the change has to be inside out. Right? So today we will be learning certain skills. We shall be playing some games. We shall be engaging you in certain activities to understand more about managing these two resources, time and goal, very well. Okay? Now, another set of questions. Again, you don't have to share these questions or answers with anybody. It is for your own assessment. Okay? मेरा पहला सवाल. Do you find yourself struggling for time? कभी कभी या often ऐसा लगता है कि time मिल नहीं रहा है? If yes, then why? If no, then it. Do you feel that your to-do list never ends? ऐसा लगता है कि काम खत्म ही नहीं होते? नंबर डालिए, y या n लिख लीजिए. Third question. You plan to do something and end up doing something entirely different. जाना था जापान, पहुंच गए चीन. होता है? होता है. Thanks to this. You find it hard to stick to a schedule. बनाते जरूर है schedule. उनसे बना रहे हैं टाइम टेबल, बच्चों को भी सिखा रहे हैं अब. यस या नो में. हाँ, yes या no. कई बार यस और नो के बीच में भी सोचिए क्या लिख सकते हैं, वो लिख दीजिए. कई बार यस होता है, कई बार कभी हाँ कभी ना. के बी कंफ्यूज वो भी है, के भी के एच भी है और समटाइम्स भी. कर लिख सकते हैं सर, समटाइम्स भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? हम कोई टेस्ट थोड़ी ना ले रहे हैं. डू यू एंड अप डिस्ट्रैक्टेड इजीली? Good is lovely, dark and deep, and we get lost in that so easily. Do you eventually get overwhelmed and exhausted? ऐसा लगता है कि यार इतना कुछ करना था, कुछ कर भी लिया, कुछ नहीं भी किया. End of the day we are exhausted, overwhelmed. If the answer to majority of the questions is yes, you can learn a lot of things today. If answer to majority of questions is no, still you can learn a few things today. Okay, so let's talk about goals first. Do you all use GPS? क्या होता है GPS? लोकेशन वाला. Global Positioning System. GPS 2 लोकेशन मांगता है ना? कौन कौन सा? स्टार्टिंग लोकेशन, डेस्टिनेशन. Excellent. तो ये है आपका स्टार्टिंग लोकेशन. ठीक है?
यहाँ ये असेसमेंट है कि हम कितना ओवरवेल्म फील करते हैं टाइम मैनेजमेंट के उसमें, और एक है गोल पोजीशन, राइट? अगर हम जीपीएस को बोले कि वो 15 सेक्टर में पान वाले की दुकान के पास छोड़ देना, छोड़ देगी? लोकेशन इस टाइप की सॉरी सर, मतलब लोकेशन टैग है तो शायद छोड़ दो, और अगर नहीं है तो तो आसपास आसपास छोड़ेगी और घुमाती रहेगी। कभी जीपीएस ने घुमाया किसी को? दिल्ली में घुमाया, हमको भी जोधपुर में बहुत घुमाया, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अनलेस वी फीड इन an exact location in GPS, even the AI system fails. Agreed? Similarly, this is true for life. If we do not put in some exact goal, or if we do not set some exact goal for ourselves, right? I promise you, it will always remain a wish or a dream or a desire. We will never be able to achieve that. Okay? Anybody, have you lately set a goal for yourself? या डू वी सेट गोल्स फॉर आवरसेल्फ कि हमारी जिंदगी सेट है, मैम क्या करते हैं, गोल्स गोल्स मिल गई हमको, वी आर इन अ वेरी गुड जॉब एंड वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट एंड अब जरूरत नहीं गोल्स की? व्हाट डू यू फील? कुछ ऐसा ही? You do set up your goals? Okay, fantastic. So हार्वर्ड की एक स्टडी हुई थी 1979 में. 100 लोगों का बैच था. सबसे बोला गया what is your goal and how many of you write down your goals. जो लोग अपने goals लिखते हैं, so there were people who would have goals and they will write down their goals. There were people who had goals and there were people 70+% of people they did. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. They did not have their goals, right? 10 साल के बाद उनका फॉलो अप किया गया, तो क्या पता चला? ये पता चला कि वो लोग जो अपने गोल सेट करते थे और लिखते भी थे, they were earning 10 times more than their colleagues, और उन 3 लोगों की salaries या incomes was almost equal to, the 3% of them were earning almost equal to the rest of the 97% of their batchmates. That is the importance of setting up goals, right? So कौन-कौन से स्फेयर्स हो सकते हैं हमारी जिंदगी में जिसमें हम गोल सेट कर सकते हैं? What are the different domains that we can set up our goals in, or you set up your goals in? Financial goals, education, relationships, health, anything else? self-actualization goals. Absolutely. Spiritual goals or self-actualization goals, right? And maybe in career. career, बिल्कुल सही, career goals. आपके यहाँ जो promotions हैं वो timelined होती है, so you can't do much about it, right? When it has to happen, it happens. Can you expedite it? जल्दी कर सकते हैं इसमें? नहीं. So it has a time. Okay. So you said financial goals, right? How do we set up financial goals? Properly saving, investment. Yes, saving, investment. हम लोग पता क्या करते हैं? Income minus saving is equal to income minus expenditure is equal to saving. ऐसा ही करते हैं? If you really want to set up and save and invest, it has to be income minus investment is equal to expenditure. If you want to set up financial goals, पहले जो salary आती है उसमें से ये decide कर लीजिए how much do I want to invest. And we have different tools to invest, right? We have from SIPs to stock exchange to FDs to so many other tools that we have. ठीक है? तो खर्चे करने के बाद जो सेविंग होता है उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाता, इनकम से इन्वेस्टमेंट करने के बाद खर्चे किए जाते हैं. ये मैं नहीं बोल रही, ये वर्ल्ड का सबसे वाइज इन्वेस्टर बोल रहा है. हु इज दैट? Warren Buffett. Warren Buffett. Okay, all right. So similarly, health goals. Now, if you really wish to achieve your goals, there are 2-3 things that we have to keep in mind. The first thing is the goal has to be specific. अगर हम गूगल को बोलेंगे कि पान की दुकान पे छोड़ दो, she is confused. So your goal has to be specific. Like I want to save these many lakhs in this much time. I want to save money is a very random goal.
keeping your income in your mind, how much money do you wish to save or invest in how much duration of time? Brain को specific instructions समझ में आती है, random instructions brain को समझ में नहीं आती है. The more specific you are with your goals, the better your brain understands the importance of that. Okay, let's do one activity. मुझे 2 volunteers चाहिए. I need 2 volunteers. I'm not going to ask you sing or dance. छोटी सी activity, be a part of it. Who's the youngest? The youngest one has to Who's the youngest? Gaurav ji famous है. आइए गौरव. प्रिया भाई भी है Famous तो है. आज ये गाड़ी 2-3 पेपर्स ले आइए, उनको क्रंच कर लीजिए. papers, balls बना लीजिए. So for the participants who joined us online, we are going to do one activity where we are going to understand the importance of goal setting. So I'm going to ask our volunteers to throw the paper balls in a waste paper basket, and I'm going to give them different situations. ठीक है? इसको बॉल बना क्रंच कर लो, 2-3 बॉल्स बना लो. हाँ. एक कागज की क्लिप नहीं बनानी सर, बॉल बनानी. जो जीवन में किया है वही करेंगे. ठीक है. तो आपको ये बॉल यहाँ खड़े होके गोल में डालना है. एग्जैक्टली. अगर मैं बोलूं कि आपके हाथ में ये बॉल्स है, यही खड़े रहना, कहीं नहीं जाना. ठीक है. और ये बॉल आपको आपके गोल में डालना है. जो गोल है, और एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, दिस इज लाल रंग की डस्टबिन, वेस्ट पेपर बास्केट लाइन हियर. इज इट अराउंड? दिख रहा है किसी को? हाँ. तो जब मैं बोलूंगी कि भैया ये बॉल्स को उनमें डाल दीजिए, क्या आप कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? अगर भी बैठेगा कौन? यस. अगर दिख जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले पता होना चाहिए ना कहाँ पे. यस, एग्जैक्टली. जब तक हमें ये पता ही नहीं कि गोल है क्या जिंदगी का, तो फिर घूमते रहिए, ढूंढते रहिए. Isn't it? So that is why it is so important to have goals in life, to remain learning throughout our lives, to keep setting up a goal post and then achieving it, and then rejoicing it, celebrating it, then changing the goal post and working towards it and doing it. That's how we evolve. Is that right? ठीक है. तो जब तक goals दिखेंगे नहीं, तब तक उनको अचीव कैसे करेंगे? कोई नहीं सकता. ओके, थैंक यू वेरी मच. अभी यही रुकिए, जाना नहीं है आपने. इसको यहाँ रखें. आप वहीं रहेंगे, यहीं पे. यहीं रहेंगे. Right? So for the participants who have joined us from remote centers, मैंने इनका गोल बहुत दूर कर दिया. ठीक है. तो आप कोशिश करिए उसमें बॉल्स डालने के लिए. यहाँ से तो काफी difficult आएगी. कोई नहीं, कोशिश कर लो. कोशिश हमने कर कौन सकते हैं, सा सामने वाले हट जाएं तो कोशिश कर सकते हैं. कोई नहीं लग जाएगा. ये कौन सा बड़े चौक खाए हमने. Hand to hand. गई. Very good. रूल से आगे निकल गया. पहुंच गई. और एक आध कोशिश करनी चाहे तो कर सकते हैं. थोड़ा अगर सा हम आगे गिरा, काफी थोड़ा बार भी पीछे. कोशिश करें, हो सकता है हो जाए, बट चांसेस क्या है? क्या समझ में आता है इस बात से? फुल क्लियर. एक क्लैरिटी होनी चाहिए, और दूसरा Achievable. अचीवेबल होना चाहिए, है ना? रियलिस्टिक होना चाहिए. Isn't it? Not that I want anybody to dream small, right? But I mean, ऐसे नहीं कि वो एक विश है, वो एक ड्रीम है, वो पूरा होगा, बट उसके पहले शायद कुछ हाँ इंटरमीडिएटरी गोल्स हमको रखने पड़े. थैंक यू वेरी मच. अभी रुकिए, अभी और करेंगे. मैडम कहते हमको तो देते कौन करते.
तो आप इंटरमीडिएट भी बोलोगे ना, इंटरमीडिएट भी आप हो गए। ओके, तो अब हमारा गोल पोस्ट हमारे पास आ गया, बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल यहाँ। ये लीजिए, ये लीजिए, आप दो इसको अचीव करिए। पुट द बॉल्स इन द बास्केट। आंख बंद करके गोल अचीव। मजा आया? आसान हो गया जैसा। नहीं, मजा आया? डिड यू फील अकम्प्लिश्ड? ऐसा लगा कि कुछ अचीव किया? हाँ, कि ये डाल दिया है, मुझे जो ट्विस्ट था पेपर है वो सही जगह दे दिया। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन था वो दे दिया। But do you think a goal like this will give you a sense of satisfaction? इतना आसान तो नहीं देखा हूँ। नहीं Goals देगा। तो वही है जो थोड़ा दूर दिख रहा होगा। Exactly. कुछ तो चैलेंज होना चाहिए गोल में, है ना? So when I do it with students, 10वीं के बाद सबसे आसान, सब लोग दोस्ती ये कर रहे, मैंने भी यही कर लिया। फिर उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में जब सबसे एक्सेसिबल था, सबसे इजी था, उधर को लुढ़क गए। फिर एमए कर लिया, फिर ऐसा कर लिया, और फिर खड़े हैं कहीं नहीं, नो मैन्स लैंड में, है ना? तो गोल इतने भी आसान ना सेटअप करें कि उनको अचीव करके, या उनको उनके अचीव करने के बाद हमें वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ही नहीं मिले, वो किक ही नहीं मिला, है ना? उस फीलिंग ऑफ अचीवमेंट ही नहीं हुआ। राइट, थैंक यू। नहीं रुको। ओके, अब हम इसको रिलेटिवली चैलेंजिंग बना देते हैं, ना इतना अनरियलिस्टिक कि ये मिल ही ना पाए और अचीव ही ना हो पाए, और ना इतना डिफिकल्ट। थोड़ा सा स्टेप बैक कर लीजिए। चलिए, आप कोशिश करिए। ओके, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए। आई पिक इट अप, दोबारा ट्राई करिए। इसको तो अचीव करके जाएंगे वापस सीट पे। इसमें भी एक लेसन है, थोड़ा मूव करना चाहो बास्केट को कर सकते हो, अलाउड। वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट देयर। मेक योर बॉल हैवी। किसी ने कुछ सलाह दी है? वेट बढ़ाना है इनका। हाँ, थोड़ा वेट बढ़ाना, बढ़ा सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज है। अगर कुछ आप इनको कुछ करना चाहे कर सकते हैं, इन बॉल्स को मैनिपुलेट करना चाहिए तो कर सकते हैं। वेरी गुड, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आ रही है। ब्रिलियंट, अब आपकी बारी गौरव। Anyway, अगर कोशिश करते रहेंगे तो पहुंच ही जाएंगे, है ना? कितने लोग हैं जिनको पहले शॉट में सब मिला जिंदगी में? हार्डली एनीवन, है ना? तो वी कांट रियली गिव अप। छोड़ो, मैं मदद करती हूँ। ये काम होता है मेंटोर का, यू नो व्हाट इज मेंटोर फॉर? जब इतना सा फर्क हो तो हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। कैन यू पुट अवर हैंड्स टुगेदर फॉर दैट? ओके, तो इस एक्टिविटी में हमने क्या समझा? सॉरी, गोल हैज टू बी हाँ, गोल हैज टू बी रियलिस्टिक, और अचीवेबल। पहली बार में हो जाता है अचीव? नहीं, नहीं। और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब वी आर केपेबल ऑफ अचीविंग दैट। और क्या देखा? मेथड चेंज कर सकते हैं। सॉरी, जो अचीव नहीं कर पाए तो मेथड चेंज कर सकते बिल्कुल सही। जब अचीव नहीं कर पा रहे, स्ट्रैटेजी बदलिए। जी सर, कहिए। हैं। And the goal should be challenging. Goal has to be challenging. Unless it is challenging, there's no joy, there's no fun achieving that goal. टेम्परेचर सेट Right? So, very important to have goals in life. Very important at any age. Right? Have you heard of that Krishna mission? Right? जो लोग मृदंग बजाते हैं, और Prabhupada ji who established it, I think ISKCON, talking about ISKCON. ISKCON, yes, thank you. So ISKCON, Prabhupada ji established it when he was 78. He started playing the mridang under some tree in America. Viktor Frankl, one of the most celebrated psychologists, he learned to fly a plane at the age of 93. I've heard one interview of Dr. Kalam. He wanted to be a pilot.
right? Or he said, I got selected, and the way he talks, I was the 9th fellow, and there were only 8 seats. So 8 fellows before me got the job, and I was the one who could not. And then he said that I became the president of India. And the president of India, he's the chief of all the wings, right? And he said, the then chief marshal, I told him, I want to fly a plane. I want to learn to fly a plane. And again, he was in his 70s when he learned to fly the plane, right? So there is no age, no complacence, please. What do you think is the purpose of life? क्या लगता है जिंदगी का क्या पर्पस है? एंजॉय करो. बिल्कुल सही. एक्सपीरियंस करो, एंजॉय करो. तो कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने की कोई एज नहीं होती. At any age, we can set certain goals to experience something new, to experience something different in our life, right? और हम सब टीचर्स हैं, हम जो करते हैं, जो नहीं करते हैं, हजारों आंखें हमको देख रही है. तो जब वो आपको ग्रो करते हुए देखेंगे, जब वो आपको कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करते हुए देखेंगे, आप tacit example बन जाओगे उनके लिए. Isn't it? So goals are very important to move forward in our life. And it's important to decide which way, which direction do I wish to go. Okay? अब बात करते हैं हैबिट्स की. मेरी साइकोलॉजी टीचर ने हैबिट को बड़ी मजेदार तरीके से हमको सिखाया था. She says हैबिट का H हटा दो ना, अ बिट फिर भी रह जाता है. ए हटा दो, बिट फिर भी रह जाता है. बी हटा दो तो इट तो रह ही जाता है. Which means कि जब आदतें पड़ जाती हैं, it's difficult to get rid of them, right? और हम सब, we are actually slaves of our habits. We are slaves of the older version of us. And जब हम कुछ different करेंगे ही नहीं, कुछ नया करेंगे ही नहीं, तो कुछ नया होगा भी नहीं ना. No new thing will happen in our life. So एक behavior है जिसको आप जब repeatedly करते रहते हैं तो वो repeated behavior हो जाता है, और आप उसको और बार बार repeat करते हैं तो वो habitual behavior हो जाता है. आप सुबह 5 बजे उठना शुरू करते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, then you form a habit of getting up early in your life, right? So behavior जो होता है, it's a conscious choice. लेकिन जो habit है, it's like a autopilot program. You don't have to think to do it, right? You have practiced it so many times that now it has become an autopilot mode. It has become an unconscious, no choice situation. ठीक है? So अब अगर कुछ भी mismanagement है हमारी लाइफ में, that is because हमारी जो आदतें हैं चीजों को मैनेज करने की, they are not very effective habits, right? So we shall be talking about certain effective things to make better use of our time. Okay? Now, सोने से पहले और जागने के बाद का टाइम, when you get up in the morning, उठने के बाद का 1 घंटे का टाइम, और रात को सोने के पहले का 1 घंटे का टाइम, राइट? वो बड़ा ही सेक्रेड और बड़ा ही यूनिक फेज होता है हमारी बॉडी और माइंड का. क्यों? क्योंकि उस समय हमारे माइंड में अल्फा वेव्स आर ऑन. आप समझते हो, माइंड हैज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन वेव्स, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, डेल्टा वेव्स, गामा वेव्स, राइट? हमारे ब्रेन में अलग अलग वेव्स हैं. जब हम एक्टिव होते हैं, जैसे अभी, इट इज बीटा वेव्स. लेकिन जब हम आधा नींद आधा जगे होते हैं, यू आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ स्लीप और यू आर एंटरिंग स्लीप, इट इज अल्फा वेव्स. और जब हमारा माइंड अल्फा वेव्स में होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेप्टिव एंड क्रिएटिव टाइम्स ऑफ आवर डे. और हम नॉर्मली उठते हैं फोन के अलार्म से. सच बताना, कितने लोग सुबह उठते पहले फोन देखते हैं? How many of you? That's a very unhealthy habit. Because whatever you watch, whatever you consume in the first hour of your day and the last hour of your day, it has a very strong impact on you. आपने कभी देखा, आप बड़े मजे से टीवी देख रहे हो तो आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है आपको पता चलता है क्या हो रहा है? If you are engrossed in the television, if you are engrossed in the mobile, do you have any idea what's happening around you? No. I told you, we are extremely receptive and extremely creative at that particular. So please, अपने दिन का पहला घंटा अपने आप को दीजिए, मोबाइल को नहीं. Reclaim your power from the digital world, from the digital gadgets around us.
क्योंकि आप उस अल्फा वेव वाले टाइम में जो भी करते हो आपका माइंड आप एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक भी सवाल नहीं पूछता है. So if you do effective things like this in that first hour of your day, anything that you feel is effective, you can exercise, you can have some me time. लोग बोलते हैं मुझे, मैं नहीं मेडिटेट कर सकता, मुझे तो नींद आ जाती है. मत मेडिटेट करो, चुपचाप बैठ जाओ. सबके घर में छोटा मोटा बाग, पेड़ पौधे, गमले हैं, ठीक है. शांति से नेचर के पास जाके बैठ जाओ, या अपने जूते पहनो, घर से बाहर चले जाओ, बिना मोबाइल के, बिना म्यूजिक के, बिना गुरबानी के, बिना भजन के. नेचर के साउंड्स के साथ अपने आप को अलाइन कीजिए. चिड़िया की चहचहाहट सुनिए, पत्तों की रसल सुनिए. लिसन टू द म्यूजिक ऑफ द विंड एंड नेचर इन द मॉर्निंग आवर्स ऑफ द डे, राइट. एंड there is a very beautiful concept that is coming up which is called as journaling. अपने भावों को, अपने विचारों को लिखिए. Write down what's going on in your mind. क्योंकि जो चीजें हम लिखते हैं उसमें बहुत क्लैरिटी आती है. आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, write it down. It's called journaling. People are doing gratitude journaling. They are doing goal setting journaling. They are doing what is positive about me journaling. So एक पेन कॉपी उठाइए, रोज सुबह उसमें कुछ लिखिए. अपने सपने लिखिए, अपनी एस्पिरेशंस लिखिए, अपने ड्रीम्स लिखिए, जो कहीं ना कहीं एज के साथ साथ पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं शायद. क्यों? ठीक है. So Robin Sharma has given us this 20-20-20 principle. 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट क्वाइट, अगर मेडिटेट कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, और 20 मिनट की जर्नलिंग. जर्नलिंग कुड भी मुझे आज पूरे दिन में क्या करना, या मैंने पिछले दिन में क्या किया, या मेरी लाइफ में क्या ड्रीम्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, या व्हाट ऑल अदर थिंग्स इन माय लाइफ व्हिच आई एम रियली ग्रेटफुल टू. चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. हर वो चीज कागज पे लिखिए जिसके लिए आप भगवान को शुक्रिया कहना चाहते. What is it that you wish to say thank you to God for? Everybody online also, please start writing everything that you want to say thank you to God for. ये बढ़िया बिस्तर में सोते हैं, गर्मी में एसी चलते हैं हमारे घरों में, सर्दियों में हमारे पास गीजर्स हैं, बाथरूम का दरवाजा अटैच्ड है ना, नल ऊपर उठाओ. आजकल तो सेंसर्स वाले नल आ गए, उंगली भी नहीं हिलानी पड़ती, नल से पानी आता है. सॉरी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी. थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल है ना. पंखे हैं, बत्तियां हैं, गाड़ियां हैं, मतलब माँ भी है सबके पास. तो फिर मतलब क्या कलेश है ना, किस लिए हम परेशान हैं? Why can't, जैसे सर ने बोला, why can't we just, there's so much to be rejoiced about. बट वही है, जो मिलता जा रहा है वो फॉर ग्रांटेड है. दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है. जो नहीं है उसके लिए भागते रहो, जो है उसकी तरफ नजर भी मत करो, राइट. एंड देन लाइफ इज डिफिकल्ट, isn't it? That is why journaling is so important. Don't just write. मतलब अगर आप जर्नल करना शुरू करें, सिर्फ ये मत लिखिए कि what am I thankful to God, why am I thankful to God for. परिवार है, घर है, कितनी कंफर्टेबल लाइफ है. आप सबकी जॉब परमानेंट जॉब है? यस. ऑल ऑफ यू हैव परमानेंट जॉब? सब लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आए हैं? यस. सैलरीज अच्छी हैं? सॉरी, एनपीएस, हम एनपीएस की सर. हमारी ये प्रॉब्लम है. इंडिया के 4% लेस देन 4% पे इनकम टैक्स. यू आर इनकम टैक्स पेइंग. थिंक आपके स्लॉट में. बिल्कुल है ना. तो नजरिया बदलिए, दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाती है. Isn't it? तो एक बार ऐसे एक मोटिवेशनल सेशन चल रहा था, बड़ा खूबसूरत, ऐसा ही एक बड़ा सा हॉल था, तो उसकी बड़ी खूबसूरत सीलिंग थी, उन्होंने रूफ बड़ी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने बिल्डिंग बनाया. तो जो मोटिवेशनल स्पीकर थे उन्होंने सबको बोला ऊपर देखिए, सबने ऊपर देखा. 99 टाइल्स अपनी जगह पे थी, एक टूटी हुई थी. क्या दिखा सबको? यही है हमारी जिंदगी की कहानी. मैं किसी को सुन रही थी, बोला मेरे हमेशा 60 नंबर आते थे, 50 नंबर आते थे, राइट. टीचर हमको बाहर निकाल देती थी. तो कहते मैं क्लास के बाहर बैठ के हमेशा सोचती थी टीचर को 60 नहीं दिख रहे, जो नई 40 आए बस वही दिख रहे हैं. तो दैट इज द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ. जो 60 है, 65 है, 70 है,
अरे उसको तो जी लीजिए. Unless you live it, I told you, what's the purpose of life? In experience. तो जो है उसको तो experience कर लो. लोगों से पूछो कैसा चल रहा है, कैसे हो, कट रही है, पढ़ते रहो. नहीं मैं एनपीएस में दूसरों के लिए सोच रहा हूँ. ये problem है. मैं दूसरों के लिए सोच रहा हूँ. अच्छा ये पेंशन की सोच रहे हैं. क्या उम्र है बरखुदार तुम्हारी? What is your age? You are giving her a shock. नहीं मैडम मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ. नहीं नहीं वो एनपीएस वालों की बात कर रही हूँ. आप क्या उम्र है? नहीं मुझे नहीं अपनी उसकी सर मैं पीछे उनकी बात कर रही हूँ. आपकी सॉरी आपकी. हाँ 26 साल के हो और एनपीएस की सोच रहे हो. अच्छा पता नहीं ना उनको घर वाले colleagues से मैडम एक्चुअली मैं उनके लिए सोच रहा हूँ. ओ ओके. तो मैं वही बोल रही हूँ कि 26 साल में अगर पेंशन की टेंशन कर रहे हो तो मतलब 26 से 62. बट मैडम अच्छा प्लानिंग अगर फैंटास्टिक. दैट्स द फिर एटीट्यूड. वही हो जाता है, लेट प्लानिंग होगी तो रिजल्ट्स भी लेट ही आएंगे. तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सैलरी तो एंजॉय कर लो. पेंशन की पेंशन देखेंगे. पता नहीं तब तक जीना मरना क्या करना है. दूसरा कोविड आना है, तीसरा आना है, चौथा आना है. पर सोहना लगदा, बहुत सोहना लगदा. प्लीज म्यूट. कमल सर म्यूट कर दीजिए. प्रभजोत कौर मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू. चलिए अब हम बात करते हैं कि टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? टेक्नोलॉजी. है ना? So we will talk about 4 things: digital distraction, digital overwhelm, digital dementia and brain drain. तो जब हम बोल रहे थे कि करने कुछ लगते हैं और करने कुछ और लग जाते हैं, मैंने फोन उठाया कि किसी को मेल करना है. उतने में कोई एक पिंग हो गया तो हम व्हाट्सएप पे निकल गए. व्हाट्सएप देख रहे थे, फिर ख्याल आया एक और भी प्राणी है जिसे फेसबुक कहते हैं, चलो उसके भी दर्शन कर लेते. और उसमें तो हम ऐसा खोए कि हमें याद ही नहीं रहा कि आधा घंटा 1 घंटा कहाँ गया. 1 घंटे बाद जब हम मजे से उठे तो बजी बॉस की घंटी. 1 घंटे पहले आपको मेल करने के लिए बोला गया था, अभी तक वो मेल क्यों नहीं पहुंचा. राइट. दिस इज कॉल्ड digital distraction. Like we are never able to stick to one app or we are not able to stick to one thing. But you know वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाली बात है, wood is lovely dark and deep. और ये wood के लिए तो कहीं जाना भी नहीं है, तो हमारे हाथ में ही. That's one of the major problems that we are facing. Second is digital overwhelm. एक चीज ढूंढनी होती है, 36 साइट्स खुल जाती, फिर पता ही नहीं चलता रेलेवेंट क्या है, इरेलेवेंट क्या है. गुम जाते हैं हम उसमें. हमें पता ही नहीं चलता when to say no and when to stop and when to not research anymore. है ना? So that is called as overwhelm. इतना ज्यादा हम लोग information overload के era में जी रहे हैं that it gets very difficult to remain sane and relevant. Agreed? Third thing, digital dementia. हम लोग को कितने लोगों के फोन नंबर्स याद है अब? बस एक दो के. हस्बैंड का याद होगा, वाइफ का याद होगा, बच्चे का क्या एक आध पेरेंट का याद होगा. दैट्स इट. ये गुम जाए तो मतलब हार्ट सिंक, जिंदगी रुक गई. क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर दिया. गाड़ी में बैठ के हम पूछते लोकेशन भेजिए जरा, इजंट इट? और वो जहाँ ले जाता रहता, हम जाते रहते. 6 बार आप उस जगह जाके आ जाओ, फिर भी कई बार हमको रास्ता ध्यान नहीं होता. फोन नंबर्स हमको याद नहीं होते, एड्रेसेस का हमें कुछ पता नहीं अब. राइट. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बिल्कुल हमारी फिंगर टिप्स पे होती थी एंड वी यूज्ड टू बी सो अटेंटिव अबाउट इट. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. और फिर हम बोलते हैं यार मोबाइल से पहले जिंदगी होती कैसी थी? थोड़ी सी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती थी मेरे ख्याल से. और जिस काम के लिए ये मशीन हमको मिला था, हम उसको इस्तेमाल करते थे. हैव यू हर्ड ऑफ चैट जीपीटी? यस. कहानी खत्म. मैंने अब तो कुछ सोचना ही नहीं, सब कुछ मिलेगा उधर. है ना? 6 कीवर्ड्स डालो, 500 पेज का नंबर का ऐसे लिखवा लो, 200 नंबर का ऐसे लिखवा लो. और More than that also. सॉरी, It's more than that also. More than Chat that. GPT से भी advanced हो गया. Yesterday my son was using a technology. He was writing a text and it was converting it to video. just I mean, I said, Oh horrible it is. God. Within a fraction of seconds, OpenAI, and he Oh was my using God. Chat GPT. I mean, oh my God. it's horrible. Text to video. क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? This conversion. Real videos, text to videos. मतलब वो टेक्नोलॉजी AI है. ये next format है Chat ये GPT का. आगे हाँ जो कुछ हो. और पता है प्लेजरिज्म में भी नहीं आता चैट जीपीटी का लिखा हुआ. AI is so intelligent that it has surpassed जो भी उनके चेक्स होते हो. They don't have emotion.
right? And then finally, brain drain, isn't it? Which means that we are हमने इतना कूड़ा भर लिया अब अपने दिमाग में, right? There is so much on our mind all the time that we are unable to do justice with even one single thing in a proper manner, isn't it? आपको क्या लगता है? Are we born with the capacity to multitask, or brain works better when we do one thing at a time? One thing at a time. One thing at a time. Exactly. तभी तो बोलते हैं गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करिए, हम तो टेक्स्ट भी कर लेते हैं, हम इतने महार हो गए इन सब चीजों में, right? So the more we try to pick up in our hands, the more the errors, the more the time taken, right? More the mistakes. So imagine, I mean, technology. हमें लगता है फेसबुक फ्री है, हमें लगता है नेटफ्लिक्स फ्री है, हमें लगता है अमेज़न फ्री है, या कितनी भी चीजें फ्री है. क्या ये फ्री है? What makes you say that? मतलब है कि आप ही प्रोडक्ट हो. Yeah, we are the product. हमें लगता है we are using technology. सच्चाई क्या है? Technology is using us. फोन उठाना, वो पहले होता था ना अजीत का डायलॉग, यहाँ आप आते अपनी मर्जी से, जाते हमारी मर्जी से, इसे उठाते आप अपनी मर्जी से, रखते इसकी मर्जी से. सॉरी, देन हाँ एक्चुअली जब तभी रखते हो जब लगा वो अरे तो बैटरी खत्म होने वाली है, isn't it? तो थोड़ा सजग होके हमको, अगर हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, we will become better time managers. ठीक है? प्लेन में पायलट भी प्लेन उड़ाता है और ऑटो पायलट मोड पे भी प्लेन होता है ना, पता है ना, आप जानते हैं ना, ठीक है? तो ज्यादा सिक्योरिटी कब लगती है? ज्यादा सिक्योरिटी हमें कब लगेगी, या ज्यादा एफिशिएंसी कब होगी? जब प्लेन पायलट उड़ाएगा कि ऑटो पायलट मोड पे होगा? पायलट उड़ाएगा. क्योंकि अगर 2-4 डिग्री का भी इधर उधर हो जाए ऑटो पायलट मोड पे, Autopilot is only allowed when you are at a very high altitude. Otherwise ना लैंड टेक ऑफ में, ना लैंडिंग में, और ना टर्बुलेंस में. वो ऑटो पायलट थी तो फर्स्ट टाइम ट्रायल कर रहे थे, पायलट नहीं बैठता, दीवार तोड़ के निकल गई, उसके बाद फिर पायलट बिठाएगा, जबकि वो पूरा ऑटो पायलट है, बट ऐसा सेफ्टी कुछ हाँ कुछ पायलट रहेगा कुछ तो करते. तो मैं यही कह रही हूँ कि ये ऑटो पायलट है और बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऑटो पायलट, इनको इस्तेमाल करना है, लेकिन जो हमारा दृष्टा भाव है, ऑब्जर्वर जो है, जो हमारा एक्टर है, उसको सजग रखना है साथ साथ, है ना? हमें डिसीजंस लेने हैं कि हमें क्या इस्तेमाल करना है, चीजों को डिसीजन नहीं लेने कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है, isn't it? So let's use it. See, 3 बड़े सुंदर शब्द हैं. एक है योग, है ना? उसके बाद है उपयोग, और उसके बाद है हाँ सदुपयोग, और एक होता है भोग. तो योग वाला फेज तो निकल गया, लेट्स बी ऑनेस्ट. यूटिलिटी मोड पे उपयोग या सदुपयोग, इनमें घूमते हैं ना. जब भोग हो जाता है ना, एक्सेस हो जाता है किसी चीज का, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, है ना? तो कंज्यूमर्स भी अगर हम बने तो माइंडफुल कंज्यूमर्स बने. I was doing one training yesterday with young group, technology वाले techies थे, engineers थे. तो कुछ mindfulness की बात हो रही थी और कुछ habits बदलने की बात हो रही थी. I was so surprised. मैंने एक lady सबसे मैंने पूछा क्या सीखा? She says, "Ma'am, I will shop less." मतलब इतना अंधाधुंध बच्चे शॉपिंग ऑनलाइन करने लग गए, इतना पैसा है, इतनी अच्छी सैलरीज हैं. शी सेज मतलब मैं पूरे सेशन में से ये सीख के जा रही हूँ कि मैं इतनी शॉपिंग नहीं करूंगी. मैं अपने मन में सोच रही थी वाओ व्हाट अ लर्निंग, राइट? सो दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. ओके, नाउ आई कम टू दिस लिटिल लेटर. इसकी बात करते हैं. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, सी देयर आर 3 R's if you want to use it better. The first R is remove. जो फिजूल की एप्स है ना, Amazon, Flipkart, Ajio, and so many more. मैंने अक्सर लोगों को देखा कुछ नहीं करते, वो उसको खोल लेते, उसको देखते रहते चीजों को. Instagram, That's highly addictive. Facebook, टाइम कंज्यूमिंग. राइट? व्हाट्सएप आई थिंक कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, फिर भी अब बहुत कुछ व्हाट्सएप पे होने लग गया. तो जितनी भी ऐप्स आपको लगता है ना कि ये मेरा टाइम खराब कर रही है, प्लीज इनको निकाल दीजिए, रिमूव देम, डिलीट देम. मेरे फोन में एक भी फालतू का ऐप नहीं है, ठीक है?
Second is called as replace. Facebook, Instagram, they can go in your system rather than they be in your mobile. And then whenever you want to watch it, I'm not against Facebook. मुझे LinkedIn और Facebook से Instagram पे मैं बहुत active नहीं हूँ. मुझे इतनी work opportunities मिली हैं because I post everything that I do on Facebook. Only my professional work. I have got so many opportunities to collaborate all across India and outside also, just because they saw me doing certain kind of work during COVID, post-COVID. Right? So, जो ये websites हैं, ये sites हैं, इनको आप अपने system में डाल दो और जब time है तब खोल के देख लो. That will save us a lot of time during the day. और तीसरा है rearrange. Rearrange का मतलब है कि जो पहला पेज है उसके ऊपर वो वाली साइट्स होनी चाहिए जिसके आप इंचार्ज हो, जैसे मैसेज, जैसे फोन, जैसे इवन अगर आप कभी टैक्सीज या कैब्स बुक करते हैं वो वाला, क्योंकि आप उनसे तो नहीं खेलोगे ना. मतलब फोन वाले आप खोल के तो नहीं देखने लग जाओगे, अच्छा मैंने इसको फोन किया था, अच्छा इसका फोन आया था, ऐसा तो नहीं करेंगे ना. सिमिलरली यू विल नॉट स्टार्ट प्लेइंग कि कहाँ कहाँ टैक्सियां खड़ी हैं मेरे आसपास. यू विल नॉट डू दैट. इतने वेले तो नहीं है, आप इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास. राइट? सो प्राइमरी एप्स सेकंड पेज पे होनी चाहिए. एस्पिरेशन एप्स. एस्पिरेशन मतलब इफ यू लिसन टू समवन, राइट, मतलब आप कोई पॉडकास्ट सुनते हो या आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपका मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, आपका हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्ट है, आपका पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्ट है, सो देयर मे बी you listen to some people or you follow certain people. So I listen to a lot of podcasts when I'm driving, so just switch it on, go there and listen to those things. It's the best time. It's the best time. You utilize. We always use it. Yes. So activities you want to spend time doing are your aspirations, and that's what need to be after that. And slot machines. Slot machines मतलब एक बार घुस गए तो फिर अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते. Those are the apps that you open and you get lost. तो अगर बहुत जरूरी है तो उनको कहीं पीछे पीछे डाल के रखिए. ठीक है? So this is how you hack your phone and you use your phone in a better manner. Right? So आज जब भी टाइम मिलेगा, जितनी बकवास की एप्स है ना उसको फोन से निकालिए. एक तो फोन हल्का होगा, थोड़ा स्पीड एफिशिएंसी बढ़ेगी और टाइम बहुत सेव हो जाएगा. ओके, दैट्स अनदर थिंग वी कैन डू. Yes, this is something that we all need to know. To-do list सब बनाते है ना, but I will say उसको थोड़ा और fine tune कीजिए. It is called context based to-do list. कॉन्टेक्स्ट बेस्ड टू डू लिस्ट का मतलब है जो काम का नेचर एक जैसा है ना उनको इकट्ठा लिखिए. किसी को मेल करना है, कुछ कोई रिसर्च पेपर कोई ढूंढना है, किसी को फोन करना है, तो जिनको फोन करना है सारी फोन कॉल्स एक साथ. राइट? जो जहां जो काम के लिए हमको अपना सिस्टम यूज करना होगा कि मैंने फलाना मेल करना था, वो मैंने कुछ डाउनलोड करना था, वो वाला चीज मैंने कहीं सेव करना था, वो वाला पीपीटी मैंने रिक्रिएट करना था, मैंने एक बार अपना अपना लैपटॉप खोला और मैंने वो सारे काम इकट्ठे करके एक ही बार में निपटा दिए. ठीक है? बीच में हाँ जी, हम भूल जाते हैं कि जब काम करने जाते हैं उस समय सिर्फ वही काम याद रहता है जो लिखिए. मेक इट अ हैबिट. जितना पेन और पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, पेन और नोटपैड इस्तेमाल करेंगे, जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी. आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोविड. मे बी 2022 के शुरू में मैंने अपने काम, अपनी अपॉइंटमेंट्स, अपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखने शुरू किए थे. मेरा कैलेंडर पहले आधा खाली होता था. Excuse me, ma'am. Yes, sir. Yeah, this is Mukeshan from MMIT Oria, हैदरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज. इसी चीज से जो आप डिस्कस कर रहे हैं, इसको रिकवर करने के लिए मेरे साथ भी यही होता था कि मैं स्विच हो जाती थी चीजें. तो अब डायरी पेन के साथ साथ अब डिजिटल है, तो अब तो मोबाइल में भी सारी चीजें फैसिलिटीज हैं. तो मैं क्या करता हूँ कि इसको समराइज कर लेता हूँ, नोट इट डाउन करता हूँ व्हाट टू डू नेक्स्ट और नेक्स्ट डे. तो बड़ा इससे मेरे को फायदा हुआ. बहुत अच्छी बात है सर. अगर मोबाइल से आपको फायदा हुआ, मोबाइल में मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है खोलेंगे नोटपैड ये देखने के लिए क्या करना है और पता नहीं कहाँ चले जाएंगे. नहीं, वो हम जिस लेवल पर वर्क कर रहे हैं तो हमें ये कम से कम रेस्ट्रिक्शंस तो रखने ही पड़ेंगे. अब 50 क्रॉस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बचपना रहेगा तो कैसे चलेगा. If you have that kind of willpower, fantastic. बहुत अच्छी बात है. However, studies have proven कि जब आप कुछ लिखते हो ना तो visual, auditory, sensory, motor सारी सेंसेस उसमें लग जाती. So brain का recall rate भी बहुत बेटर रहता है. जी सर. एक बात और है मैडम कि ये कहने की बात है कि एक्चुअली जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वर्क कर रहे होते हैं ना,
तो ये हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती कि मोबाइल में एक्सपेंड करने के लिए टाइम कैसे मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि मोबाइल तो इतना गैजेट ऐसा हो गया कि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। I तो उसमें totally कीप नोट्स होता है। जी। never said कि मोबाइल छोड़ दीजिए. However, I said उपयोग कीजिए. Utilize कीजिए. But there would be so many people on this call, sir, who are not just utilizing it, but they needed little bit of this, pep talk on how not to get so easily distracted by the mobile phone. So I really respect it, sir, that you have so much of willpower and you're so organized already, right? So, but yes, I'm just sharing whatever little things I have learned over the period of time. वी हैव टू मैनेज आवर टाइम ना एक्चुअली। सोशल मीडिया को कितना देना है, ऑफिस को कितना देना है, ये सब तो मैनेजमेंट का पार्ट है। Yes, we have to manage ourselves, Yeah. right? Yeah. So, for those who think that there are distractions, आप कुछ कर रहे हो और एक फोन आ गया, आपको पता है ना कि वो फोन का ग्रेविटी क्या है? When I say ग्रेविटी क्या है, किसी दोस्त का आया है तो ऐसे ही बात करने के लिए आया है, मैं अपना काम खत्म करके आई कैन गेट बैक टू द कॉल. ओके, अगर बॉस का आया है या आपकी वर्क प्लेस से आया, देन आई अंडरस्टैंड दैट यू मे हैव टू टेक इट इमीडिएटली, राइट? If I'm doing something which needs a lot of focus, I don't really care much about my phone. क्योंकि जब हमने काम खत्म कर लिया, वो अगर 4 या 5 मिस्ड कॉल इकट्ठा हो गया ना, वो तो जब काम खत्म हो जाएगा, पांचों कॉल एक साथ कर लेंगे. कई बार अर्जेंट मतलब हद से आता है। मैंने पहले ही बोला सर कि वो हम समझ सकते हैं कि अभी जैसे मेरा बेटा क्लास में गया, अगर उसका फोन आएगा तो मैं इस सेशन में भी ले लूंगी, क्योंकि मुझे कभी फोन नहीं करता, right? But if a phone call happens, that means there is an emergency or he needs my help. I'll take that call. But if my friend is calling, I will just put it on silent and I'll say I'll talk to you later. प्राइवेट इंडस्ट्री में तो मैम मुश्किल हो जाएगा फिर, अगर बॉस का फोन नहीं उठाया तो। गवर्नमेंट में तो फिर भी चल सकता है। I think you didn't hear me. I started off like this only, that हमें इतना डिस्क्रिशन है कि कौन सा फोन इमीडिएटली उठाना है और कौन सा फोन अभी वेट कर सकता है. जो इमीडिएटली उठाना है उसको उठा लीजिए, जो भी रुक सकता है उसको अपने काम में इंटरफियर करने मत दीजिए, ठीक है? Another very important thing that I wish to share with you is understand the difference between project and task. Okay? So many times we want to do something. Anybody? Is there something that you've been procrastinating for some time? कोई ऐसी चीज जो करने वाली है बट थोड़ी देर से आप उसको procrastinate कर रहे हो? Would you like to share? मेरी किताब लिखनी बहुत देर से ड्यू है, मुझे 2 साल हो गए सोचते हुए. आई एम प्रोक्रेस्टिंग राइटिंग माय बुक, फर्स्ट बुक, नेक्स्ट बुक नहीं, फर्स्ट बुक. यस, क्या करना चाह रहे हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं बहुत देर से? Normally happens with your gymming set schedule. Once you ना suppose इतना टाइम से कर रहे हैं और बीच में गैप आ जाता है, फिर से अगर दोबारा आपको स्टार्ट करना है तो it will get procrastinated. It gets procrastinated. Yes, हमारी हेल्थ कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती. बिल्कुल सही. That I would not consider it a project, sir. It is something that is a task which you can start doing next morning as well. Anybody, कोई project, कोई रिसर्च पेपर लिखने वाला है किसी का जो सोच रहे हो बहुत देर से? मेरी PhD चल रही है। ओके, के लिए मैं अब जब से यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ तब से मैं टाइम निकालना मुश्किल हो गया. हाँ. मैं रोज सोचा कि सब मैं सेट करूँगी। ओके, सो वन इज PhD. और कुछ, और किसी के दिमाग में कुछ हो, कोई चीज जो डिले कर रहे हो बहुत देर से? घर खरीदना है किसी ने, गाड़ी खरीदनी है, अलमारी साफ करनी है किसी की, कोई ऐसा कोना घर का जो निग्लेक्टेड है, स्टोर बहुत साल से, बहुत दिन से, बहुत महीनों से, that's called a project, right? We only procrastinate 2 types of things. 1, it is difficult. 2, I'm not interested in doing that. जो मन का है और जो आसान है वो हम कभी भी procrastinate नहीं करते हैं. Okay? So take a moment, please jot down ऐसी 2-3 चीजें जो आप बहुत देर से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, लिखिए उसको, अभी आइडेंटिफाई कीजिए प्लीज उसको. 2-3 things that you have been procrastinating for quite some time. कर लेंगे, यहाँ करना तो चाहिए, कर नहीं रहा हूँ. It could even be going on a holiday. Let me tell you. Noted? Okay. Now I'll tell you. वो बोलते हैं ना, a stitch in time saves 9. ऐसा एक और फ्रेज होता है कि कई बार
एक छोटी सी मिसिंग लिंक की वजह से एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है. So there was this lady whom I was coaching for some personal emotional things. तो एक दिन वो मुझे बोलती है, I went to her house and they had shifted from somewhere. कहीं से शिफ्ट होके आए थे और उसके एक कमरे में किताबों और किताबों के कार्टन्स के अलावा कुछ नहीं था. एंड शी सेड, शिल्पा, आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड. ये किताबें मेरे से संभाली ही नहीं जा रही. ऐसे चलो करते हैं, अभी करते हैं, लेट्स डू इट. शी सेज, अलमारी नहीं है. एंड दे वर वेल ऑफ पीपल. आई सेड, खोलो Amazon, खोलो पेपर फ्राई, चलो ऑर्डर करते हैं, अभी के अभी अलमारी ऑर्डर करते हैं. शी सेज, बट मुझे मेजरमेंट्स नहीं पता. मैंने कहा, निकालो टेप, मेजरिंग टेप निकालो, अभी मेजर करते हैं, अभी ऑर्डर प्लेस करते हैं. She says, मुसीबत ही है, मेरे घर में मेजरिंग टेप ही नहीं है. I said, do you trust me with your house? कि अगर तुम मुझे अकेले छोड़ के अपने घर में चली जाओगी तो मैं कुछ चुराऊंगी नहीं. She says, yes, I trust you. I said, मैं यहाँ बैठी हूँ, जाओ सामने से जाके मेजरिंग टेप लेके आओ. She went, got the measuring tape. कितने का आया होगा? 150-200 रुपए का. हमने वहीं के वहीं खड़े होके उस जगह को मापा. उसके साथ बैठ के मैंने वहीं के वहीं, I think पेपर फ्राई से शायद एक अलमीरा ऑर्डर किया जो हम चाहते थे. थी वो 30-35 हजार की अलमारी, बट एज आई टोल्ड यू दे वर वेल ऑफ पीपल. 4 या 5 दिन में वो अलमारी डिलीवर हो गई. अब मैंने बोला, कुछ नहीं करो, एक एक कार्टन खोलो और उसमें किताबें टिकाते जाओ. इट इवेंचुअली टुक हर 1 day टू सेट अप द होल थिंग राइट. We assume projects to be tasks and we do not know where to start. So whenever you are procrastinating, जब भी आप कोई काम डिले करते जा रहे हैं, उसको इतना छोटा भाग में बांट लीजिए कि अब वो एक फर्स्ट काम करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है. Does it make sense? पिज्जा खाया किसी ने? खाया? ओके. पिज्जा आपके घर पे डिलीवर हुआ, फिर हम क्या करते हैं? डब्बा खोलते हैं. बिल्कुल. फिर पीस को थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं सारों. Yes. फिर हम एक एक स्लाइस अलग करते हैं. फिर तो अपना अपना लो और खाओ. अपना लो और एक एक बाइट करके खाओ. अग्रीड? हाँ. तो जिंदगी भी यूं ही जी जाती है, काम भी यूं ही निपटाए जाते हैं. बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांटिए और हर एक छोटे भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कर लीजिए. किसी की अलमारी खराब है, जिसको साफ करना है, मेन फोक तो देख भी नहीं रहे मेरी तरफ. सिर्फ द लेडीज नॉडिंग, बिकॉज हमारा थोड़ी ना काम है अलमारियां साफ करना. हमने तो रखा हुआ है जिंदगी भर का. अलमीरा ही नहीं है मैडम. अच्छा, तो कैसे गठरियों में सामान बांधते? यहाँ नहीं कह रही, घर में तो अलमारी होगी. अच्छा, उधर में नहीं है. उधर भी है. So what I'm trying to say is, पूरी अलमारी एक दिन में साफ नहीं हो सकती. एक ड्रॉर खोलिए, उसको क्लियर कीजिए. दूसरा कोना देखिए, उसको क्लियर कीजिए. हमेशा जब भी ओवरवेलमिंग लगे कोई टास्क, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए. एंड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट एक्शन. Clear books from the living room. This is the example that I've already shared with you. See, look at this. क्या समझ में आ रहा है? अगर पूरा भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करोगे, हो जाएगा? नहीं होगा. बट अगर एक एक ईंट एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा. ठीक है? तो पिज्जा का एग्जाम्पल याद रखिएगा. हम जिंदगी को पता कैसे जीते हैं? जैसे हम बर्गर को बाइट करते हैं. इतना बड़ा जंबो बर्गर, एक के ऊपर एक सब चीज रख लिया, फिर जैसे उसको बाइट किया वो सारा प्लेट में बिखर गया. ये लेटस लीफ घूम रहा है, इधर टिक्की घूम रही है, इधर प्याज बिखरा हुआ, उधर टमाटर उड़ रहा है. डोंट डू दैट. डोंट पाइल ऑन थिंग्स. डू वन थिंग एट अ टाइम. दैट इज सो इम्पोर्टेंट. दिस इज द एग्जाम्पल आई वाज वांटिंग टू गिव यू. स्टेपलर यूज किया, कट पिन्स एक साथ यूज कर लेते हैं हम. कॉपिन्स खाई है बचपन में कभी? एक से कभी नहीं. हम एक पे हाथ कभी नहीं रुकता था. क्यों? क्योंकि दूसरी वाली बिल्कुल रेडी होती थी. Isn't it? तो अपनी बड़ी डिफिकल्ट काम को सिंपल स्टेप्स में ऑर्गेनाइज कर लीजिए और आपको पता होना चाहिए इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या. मैम कौन से फेज में है पीएचडी के आप? अभी 1.5 साल हुआ.
साइनॉप्सिस हो गया होगा, साइनॉप्सिस हो गया. मेरे रेगुलर बोर्ड पे मैं पेज लेती हूँ, मैं वहां से विथड्रॉ करके आई. ओके, ऑलराइट. तो अभी क्या दोबारा शुरू करना है कि वापस वहीं पे शुरू करना है? मैम या प्रोविजन पीरियड पूरा करने के बाद आई ट्राई टू नेगोशिएट इफ दे विल अलाउ मी टू गो. ओके ओके. तो अभी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना उसके बारे में. बट आई कैन स्टार्ट रीडिंग क्योंकि मेरे पास वो 1.5 साल का 3 ईयर की मैम DNS की रेसिडेंशियल पीरियड पूरा करना होता है यूनिवर्सिटीज में. तो मेरा 1.5 हो गया है. अगर मैं यहाँ से कोशिश करूँ कि मेरा हो जाए और ये लोग मुझे जाने दें यहाँ से, तो मैं मुझे 1.5 साल में फिर वो सबमिट करके वापस आना होगा. I don't have much time for that. So what is stopping you from started reading? क्या रोक रहा है आपको? किताबें हैं आपके पास, कंटेंट है आपके अभी पास. just 10 days back मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ. Oh, so you will take your time. But I hope you understood कि करना क्या है ना? Let your content be ready. उसको बिल्कुल विजिबल रखिए. जैसे फोन होता है ना हाथ में, ऐसे वो किताबें जो पढ़नी उनको बिल्कुल अपने आसपास रखिए. जब मौका मिले खोलिए पढ़िए. That's very important. नहीं तो PhD होगा नहीं. Okay. दो चीज और बताऊंगी एंड देन there's something called as 10 minutes rule and there is something called as saving the quit moment. Right? अगर सच में अपनी फोकस को और अटेंशन को बढ़ाना चाहते हैं which will save you a lot of time. Right? जैसे अभी मन किया कि बस अब हो गया, अब नहीं मैंने और करना, बस 10 मिनट और इंतजार कर लीजिए. बस 2 मिनट में, ठीक है? जस्ट 10 more minutes. राइट? अभी लग रहा है कि अब और चैप्टर मैंने नहीं पढ़ना, मैंने और रिसर्च नहीं करना, मैंने और ये नहीं करना. जस्ट सिट विद इट फॉर 10 minutes. Right? And another way of looking at it is, you know, because this is the moment you wish to quit. अगर आप वो moment बचा गए, then your mind is your slave and you are the master of your mind. Again, as I said, अगर आप ऑटो पायलट मोड पे हो, जैसे ही थके बॉडी बोलेगी उठो निकलो. But if you're on a conscious self-driving mode, you'll say no, 10 more minutes. I want to sit here. I want to do this. Okay? Anger is like same, like you manage anger. Same. बिल्कुल sir. You just give a break for a minute and then you will. You are in a better position you to handle. और आखिरी चीज, change your narrative. मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करता, मैं तो हमेशा ही ऐसे करता हूँ. Right? So what are you feeding to your brain? That is very, very important. मुझे हमेशा लगता था, I used to feel that, you know, my memory is failing me. And I was right. But ever since I've started saying that anything I need will come to me effortlessly, my memory has started improving. So how are you feeding yourself? What are you feeding yourself on? If you keep telling yourself, I can't handle this, why is this happening to me? Why me? It's going to be difficult. However, if you change your narrative to, I am capable, I'm in the process of learning, I'm training my mind to do something new, that will help you build up the new time management muscle or new self-management muscle. और हैं 24 ही घंटे सबके पास. Some people utilize it so well and some people regret that this was not enough. Now it is your decision which category do you wish to fall in, right? And we started the session saying this कि ना हम time को, emotion को, relationship को, किसी चीज को manage नहीं कर सकते. There's only one individual we can manage and that is us, right? So thank you very much. This is all I wish to share with you. जो चीजें relevant लगी उनको ले जाइए, इस्तेमाल कीजिए. जो relevant लगी इसी रूम में छोड़ दीजिए. Right? Thank you.